السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنی یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو پھر وہی شعر یاد دلانا چاہوں گا کہ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ ساتھیوں، آج کے کلاس کے اندر میں آپ کو جگن ناتھ آزاد کے بارے میں بتانے والا ہوں، ان کے تصنیفات کے بارے میں بتاؤں گا۔ ساتھیوں، جو ہماری نصابی کتاب درخشاں حصہ دوم کے اندر میں آج کے کلاس کے اندر میں آپ کو جگن ناتھ آزاد کے بارے میں بتاؤں گا۔ ساتھیوں، جو ہماری نصابی کتاب درخشاں حصہ دوم کے اندر میں ایک نظم نگار کی حیثیت سے شامل ہے۔ ساتھیوں، ان کے نظم کا نام انڈیا گیٹ ہے، ان کے نظم کا نام انڈیا گیٹ ہے، جو ہماری نصابی کتاب ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ ساتھیوں، میں امید کروں گا خدا کی ذات سے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ جگن ناتھ آزاد، ساتھیوں، ان کا ایک نظم ہے ہماری درسی کتاب میں جس کا نام ہے انڈیا گیٹ۔ جگن ناتھ آزاد کا ایک نظم ہے ہماری درسی کتاب کے اندر میں، اس کا نام ہے انڈیا گیٹ۔ اس نظم کا نام ہے ساتھیوں انڈیا گیٹ۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے جگن ناتھ آزاد محقق بھی تھے اور شاعر بھی۔ جگن ناتھ آزاد محقق بھی تھے اور شاعر بھی، غزل گوئی اور نظم نگاری پر بھی یکساں دسترس رکھتے تھے۔ یاد رکھیں گے ساتھیوں، جگن ناتھ آزاد بڑے محقق بھی تھے اور شاعر بھی۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں ہماری نصابی کتاب کے اندر میں جگن ناتھ آزاد ایک نظم نگار کی حیثیت سے شامل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جگن ناتھ آزاد بہت بڑے محقق بھی ہیں ساتھیوں، اور شاعر تو ہیں ہی۔ ساتھیوں، بڑے شعراء میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ جگن ناتھ آزاد محقق بھی تھے اور شاعر بھی، غزل گوئی اور نظم نگاری پر یکساں دسترس رکھتے تھے۔ ساتھیوں، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ تلوک چند محروم۔ ساتھیوں، جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام تلوک چند محروم ہے، جو بہت بڑے شاعر تھے۔ جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام تلوک چند محروم ہے ساتھیوں۔ جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام تلوک چند محروم ہے، جو بہت بڑے شاعر تھے۔ ساتھیوں، کہا جاتا ہے کہ جگن ناتھ آزاد کو شاعری وراثت میں ملی ہے ساتھیوں، یہ کہا جاتا ہے اور بہت مشہور ہے کہ جگن ناتھ آزاد کو شاعری وراثت میں ملی ہے۔ ساتھیوں، وراثت میں ان کو ملی ہے۔ یاد رکھیں گے والد کا نام تلوک چند محروم ہے، جو بہت بڑے شاعر تھے۔ ساتھیوں، جو خود بھی ایک شاعر تھے، چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری انہیں وراثت میں ملی ہے۔ ساتھیوں، جگن ناتھ آزاد کو شاعری وراثت میں ملی ہے کیونکہ ساتھیوں ان کے گھر کا ماحول شاعرانہ تھا ساتھیوں۔ ان کے والد بھی بہت بڑے شاعر تھے، اس لیے ان کو شاعری وراثت میں ملی ہے۔ یاد رکھیں گے آپ، جگن ناتھ آزاد کی پیدائش 5 دسمبر 1918 عیسوی کو عیسیٰ خیل میں ہوئی تھی ساتھیوں، جو اب پاکستان کے اندر میں ہے۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے جگن ناتھ آزاد کی پیدائش عیسیٰ خیل میں ہوئی تھی۔ کہاں پر ہوئی تھی؟ عیسیٰ خیل کے اندر میں۔ ساتھیوں، کب ہوئی تھی؟ 5 دسمبر 1918 عیسوی کو۔ 5 دسمبر 1918 عیسوی کو، جو اب پاکستان کے ضلع میان والی کی تحصیل ہے۔ ساتھیوں، جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 5 دسمبر 1918 عیسوی کو۔ کب ہوئی تھی؟ 5 دسمبر 1918 عیسوی کو۔ کہاں ہوئی تھی؟ عیسیٰ خیل کے اندر میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ عیسیٰ خیل کے اندر میں، جو اب پاکستان کے ضلع میان والی کی تحصیل ہے۔ جگن ناتھ آزاد کی وفات 25 جولائی 2004 عیسوی کو دہلی میں ہوا۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی تھی تو آپ کہیں گے 5 دسمبر 1918 عیسوی کو۔ کب ہوئی تھی؟ 5 دسمبر 1918 عیسوی کو۔ اور کہاں ہوئی تھی؟ 5 دسمبر 1918 عیسوی کو عیسیٰ خیل میں ہوئی، جو اب پاکستان کے ضلع میان والی کی تحصیل ہے۔ یاد رکھیں گے ساتھیوں، جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی تھی؟
5 दिसंबर 1918 ईस्वी को 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को कहाँ हुई थी? ईसा खेल में। साथियों कहाँ हुई थी? ईसा खेल में, जो अब पाकिस्तान के जिला मयानवाली की तहसील है। साथियों पाकिस्तान के जिला मयानवाली की तहसील है। जगन्नाथ आजाद की वफात कब हुई थी? 25 जुलाई 2004 ईस्वी को दिल्ली के अंदर। साथियों अगर कोई आपसे पूछे जगन्नाथ आजाद की वफात कब हुई थी, तो साथियों आप याद रखेंगे 25 जुलाई 2004 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? दिल्ली के अंदर में। साथियों जगन्नाथ आजाद की वफात 25 जुलाई 2004 ईस्वी को दिल्ली में हुई। इसी तरीके से आप याद रखेंगे आपकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। वालिद साहब खुद भी एक टीचर थे। साथियों जगन्नाथ साहब के वालिद तिलुक चंद महरूम साहब खुद भी एक शायर थे और एक टीचर भी थे। साथियों एक टीचर भी थे, इसलिए इब्तदाई तालीम जगन्नाथ साहब की घर पर हुई। साथियों आपकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। वालिद साहब भी खुद एक टीचर थे। आपकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। वालिद साहब खुद भी एक टीचर थे। साथियों इसीलिए इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई इनकी। 1942 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी जुबान व अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। साथियों 1942 ईस्वी में फारसी जुबान व अदब में बीए पास किया। साथियों जगन्नाथ आजाद साहब ने 1942 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी जुबान व अदब में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की और 1944 ईस्वी में इसी मजमून से एमए किया। आप याद रखेंगे 1942 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी जुबान व अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। साथियों किस जुबान में? फारसी जुबान व अदब में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। और साथियों 1944 ईस्वी में इसी मजमून से साथियों इसी जुबान व अदब फारसी से एमए किया। और याद रखेंगे जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो वो दिसंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली आ गए, लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक हमेशा रहा। साथियों क्योंकि पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे? साथियों आप याद रखेंगे जो अब साथियों मयानवाली की तहसील है, पाकिस्तान के जिला मयानवाली की तहसील है। ईसा खेल उस जगह का नाम है। साथियों जिस जगह पर जगन्नाथ आजाद की पैदाइश हुई थी, साथियों कब हुई थी? 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? ईसा खेल में। ईसा खेल कहाँ है? पाकिस्तान के जिला मयानवाली की तहसील में। साथियों ईसा खेल कहाँ है? पाकिस्तान के जिला मयानवाली की तहसील में। अगर कोई आपसे पूछे जगन्नाथ साहब की वफात के बारे में साथियों, तब आप कहेंगे इनकी वफात कब हुई थी? 25 जुलाई 2004 ईस्वी को। 25 जुलाई 2004 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? दिल्ली के अंदर में। कहाँ हुई थी? दिल्ली के अंदर में। साथियों मैं आपको बताऊं आपकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। वालिद साहब खुद भी एक टीचर थे। साथियों जिनका नाम था तिलुक चंद महरूम। साथियों आप याद रखेंगे जगन्नाथ आजाद साहब के वालिद एक टीचर भी थे और एक बड़े शायर भी थे, इसलिए इनको इब्तिदाई तालीम घर पर मिली और सारी साथियों इनको विरासत में मिली है। 1942 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी जुबान व अदब में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की और 1944 ईस्वी में इसी मजमून से एमए किया। साथियों जगन्नाथ आजाद साहब ने फारसी जुबान व अदब में, साथियों आप याद रखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी जुबान व अदब में जगन्नाथ आजाद साहब ने बीए की डिग्री हासिल की और साथियों उसी यूनिवर्सिटी से फारसी जुबान व अदब में एमए की सनद हासिल की। आप याद रखेंगे आपकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई और वालिद साहब खुद भी एक टीचर थे और शायर भी। 1942 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी जुबान व अदब में एमए की। 1942 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी जुबान व अदब में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की और 1944 ईस्वी में इसी मजमून से साथियों फारसी जुबान व अदब से एमए पास किया। जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो वह दिसंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली आ गए, लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक हमेशा रहा। याद रखेंगे आप जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो जगन्नाथ आजाद साहब 1947 ईस्वी को दिल्ली चले आए और साथियों यहीं आकर रह गए। साथियों आप याद रखेंगे इस चीज को, जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो दिसंबर में ही साथियों 1947 ईस्वी में वो ये पाकिस्तान से साथियों आ गए कहाँ? दिल्ली के अंदर और यहीं आकर रह गए, लेकिन पाकिस्तान से उनका रिश्ता उनका ताल्लुक हमेशा रहा। जगन्नाथ आजाद मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की। साथियों जगन्नाथ आजाद ने मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की।
जगन्नाथ आजाद मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की और आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्हें सदर शोबा का ओहदा मिला। वह इस मनसब पर 1983 ईस्वी तक फाइज रहे। साथियों, इस मनसब पर 1983 ईस्वी तक फाइज रहे। जगन्नाथ आजाद मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की और आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्हें सदर शोबा का ओहदा मिला। जगन्नाथ आजाद मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की और आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्हें सदर शोबा का ओहदा मिला। वह इस मनसब पर 1983 ईस्वी तक बने रहे। साथियों, फिर प्रोफेसर एमरिटस बना दिए गए। यह एजाज उनके लिए ताहयात था। याद रखेंगे साथियों इस इबारत को। जगन्नाथ आजाद साहब मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की और आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्हें सदर शोबा का ओहदा मिला। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर साथियों जगन्नाथ आजाद साहब को सदर शोबा का ओहदा मिला। याद रखेंगे आप। वह इस मनसब पर 1983 ईस्वी तक बने रहे। साथियों, फिर प्रोफेसर एमरिटस बना दिए गए। ये एजाज उनके लिए ताहयात था। जगन्नाथ आजाद माहिर इकबालियात हैं। साथियों, आप याद रखेंगे जगन्नाथ आजाद माहिर इकबालियात हैं। जगन्नाथ आजाद माहिर इकबालियात हैं। साथियों, आज के क्लास के अंदर मैं आपको जगन्नाथ आजाद के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, आज के क्लास के अंदर हमारी निसाबी किताब दरख्शां सादोम के अंदर में एक मजमून निगार की हैसियत से शामिल जगन्नाथ आजाद के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, इनके मजमून का नाम इंडिया गेट है। इनके मजमून का नाम इंडिया गेट है जो हमारी निसाबी किताब दरख्शां सादोम के अंदर में शामिल है। साथियों, इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो साथियों मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी आपके लिए नए नए वीडियोस अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले साथियों आप तक पहुंचे। मैं दरख्वास्त करूंगा फिर कि आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर कर दें अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कर दें ताकि मजीद तरह से फवायद हासिल कर सकें। साथियों, अब मैं आपको जगन्नाथ आजाद साहब की तसनीफात के बारे में बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप गौर से सुनेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। तसनीफात में साथियों फिक्र इकबाल, नवाए परेशान। साथियों, अब मैं आपको जगन्नाथ आजाद साहब की तसनीफात से रूबरू कराता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीम आप गौर से सुनेंगे। तसनीफात में साथियों फिक्र इकबाल, नवाए परेशान, पिस्किन के देश में इकबाल की कहानी, तामीर फिक्र, मेरे सर गुज़िश्ता रोज़ व शब, जुस्तजू कहकशां, अजंता, तिलुक चंद महरूम, मुरक्क़े इकबाल वगैरह खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। साथियों, तसनीफात में आप याद रखेंगे फिक्र इकबाल, नवाए परेशान, पिस्किन के देश में इकबाल की कहानी, तामीर फिक्र। साथियों, आप याद रखेंगे ये सारे तसानीफ जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया ये जगन्नाथ आजाद साहब की तसनीफ है। साथियों, आप फिर से सुनेंगे फिक्र इकबाल, नवाए परेशान, इसी तरीके से पिस्किन के देश में इकबाल की कहानी, तामीर फिक्र, मेरे गुज़िश्ता रोज़ व शब, इसी तरीके से साथियों जुस्तजू कहकशां, अजंता, तिलुक चंद महरूम, मुरक्क़े इकबाल वगैरह खास तौर से काबिल जिक्र हैं। साथियों, आप याद रखेंगे जगन्नाथ आजाद साहब एक बहुत बड़े मुहक्किक भी थे और शायर भी थे। गजल गोई और नज्म निगारी पर भी यकसां दस्तरस रखते थे। याद रखेंगे साथियों, जगन्नाथ आजाद साहब एक बहुत बड़े मुहक्किक भी थे और शायर भी। गजल गोई और नज्म निगारी पर भी यकसां दस्तरस रखते थे। साथियों, वालिद साहब का नाम तिलुक चंद महरूम है। जगन्नाथ साहब के वालिद का नाम तिलुक चंद महरूम है जो खुद भी एक शायर थे। चुनांचे कहा जा सकता है कि शायरी उन्हें विरासत में मिली है। साथियों, ये कहा जाता है, बहुत ही मशहूर है। साथियों, ये कहा जाता है कि जगन्नाथ आजाद साहब को शायरी विरासत में मिली है। किसमें मिली है? विरासत में मिली है। जगन्नाथ आजाद साहब की पैदाइश कब हुई? 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल के अंदर। साथियों, आप याद रखेंगे जगन्नाथ आजाद साहब की पैदाइश कब हुई?
5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में साथियों, ये ईसा खेल कहाँ है? अब तो साथियों पाकिस्तान के अंदर है। साथियों पाकिस्तान के जिला बयानवाली की तहसील है। साथियों आप याद रखेंगे पाकिस्तान के जिला बयानवाली की तहसील में ईसा खेल एक गांव है साथियों, यहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को। 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को जगन्नाथ साहब की वफात कब हुई? 25 जुलाई 2004 ईस्वी को जगन्नाथ साहब की वफात कब हुई? 25 जुलाई 2004 ईस्वी को। साथियों कहां पर हुई थी? दिल्ली के अंदर। कहां पर हुई? दिल्ली के अंदर। साथियों जब मुल्क का बंटवारा हो रहा था तो जगन्नाथ साहब दिसंबर 1947 ईस्वी को दिल्ली चले आए और यहीं आकर रह गए। साथियों याद रखेंगे आप, जगन्नाथ साहब का वास्ता, जगन्नाथ साहब का ताल्लुक, साथियों जगन्नाथ साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से हमेशा रहा है। साथियों आप याद रखेंगे जगन्नाथ साहब का वास्ता पाकिस्तान से हमेशा कायम रहा है। जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो वह दिसंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली चले आए, लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक हमेशा रहा। साथियों जगन्नाथ आजाद मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की और आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी में, कहां पर साथियों? जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्हें सदर शोबा का ओहदा मिला। वह इस मनसब पर 1983 ईस्वी तक बने रहे। साथियों जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर में जगन्नाथ आजाद साहब को सदर शोबा का ओहदा मिला। साथियों सदर शोबा का ओहदा मिला जिस पर वो साथियों 1983 ईस्वी तक बने रहे। कब तक? 1983 ईस्वी तक बने रहे। प्रोफेसर एमेरिटस बना दिए गए। ये एजाज उनके लिए ताहयात रहा। साथियों जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर में जगन्नाथ आजाद साहब को सदर शोबा का ओहदा मिला और उस ओहदा पर कब तक कायम रहे? साथियों 1983 ईस्वी तक उसी ओहदा पर कायम रहे। 1983 ईस्वी तक इसी ओहदा पर कायम रहे। साथियों फिर जगन्नाथ साहब को प्रोफेसर एमेरिटस बना दिए गए। साथियों ये एजाज उनके लिए ताहयात कायम रहा। फिर जगन्नाथ आजाद साहब को प्रोफेसर एमेरिटस बना दिए गए। साथियों ये एजाज उनके लिए ताहयात था। जगन्नाथ आजाद साहब को माहिर इकबालियात कहा जाता है। साथियों आप याद रखेंगे जगन्नाथ आजाद साहब माहिर इकबालियात हैं। साथियों जगन्नाथ आजाद साहब माहिर इकबालियात हैं। इनकी तसनीफात में फिक्र इकबाल, नवाए परेशान, पिस्किन के देश में, इकबाल की कहानी, तामीर फिक्र, मेरे गुज़िश्ता रोज़ो शब। इसी तरीके से साथियों जुस्तजू, कहकशां, अजंता, तिलूक चंद महरूम। साथियों इनकी तसनीफ का भी नाम है और इनके वालिद साहब का भी नाम है मुरक्का इकबाल वगैरह खास तौर से काबिल जिक्र है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि मैं जो अभी आपको जगन्नाथ आजाद साहब के बारे में बता रहा हूँ आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। साथियों जगन्नाथ आजाद साहब हमारी निसाबी किताब, हमारी दरसी किताब के अंदर में साथियों एक नज्म निगार की हैसियत से शामिल है। जबकि आप याद रखेंगे जगन्नाथ आजाद साहब बहुत बड़े मुहक्किक भी हैं। साथियों गदर गो शोरा में इनका नाम जगन्नाथ आजाद साहब बहुत बड़े मुहक्किक हैं और शायर हैं। साथियों नज्म निगारों में इनका नाम शुमार होता है। आप याद रखेंगे साथियों, आप याद रखेंगे जगन्नाथ साहब के वालिद का नाम तिलूक चंद महरूम है। साथियों आप याद रखेंगे इनकी पैदाइश कब हुई थी? साथियों आप याद रखेंगे मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया है 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को जगन्नाथ साहब की पैदाइश कब हुई थी? 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल के अंदर में। कहां पर साथियों? ईसा खेल के अंदर में, जो आप पाकिस्तान की जिला बयानवाली की तहसील है। अगर कोई आपसे पूछे जगन्नाथ आजाद साहब की वफात कब हुई और कहाँ हुई? साथियों जगन्नाथ साहब की वफात 25 जुलाई 2004 ईस्वी को दिल्ली में हुई। याद रखेंगे आप जगन्नाथ आजाद की वफात 25 जुलाई 2004 ईस्वी को हुई। पैदाइश कब हुई थी साथियों? आप याद रखेंगे 1918 ईस्वी में, 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। और वफात कब हुई साथियों? वफात दिल्ली के अंदर में हुई।
कब हुई? याद रखेंगे आप 25 जुलाई 2004 ईस्वी को, 25 जुलाई 2004 ईस्वी को इनके तसनीफात में मैंने आपको बताया साथियों। फिक्र इकबाल, नवायत परेशान, किस्किन की देश में, इकबाल की कहानी, तामीर फिक्र, मेरे गुज़िश्ता रोज़ो शब, जुस्तजू, कहकशां, अजंता, तिलुक चंद महरूम, मुरक्क़े ख्याल, मुरक्क़े इकबाल वगैरह खास तौर से काबिल जिक्र हैं साथियों। इसी तरीके से आप गौर से सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी साथियों। अब मैं आपको जगन्नाथ आजाद साहब की नज़्म इंडिया गेट जो हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में शामिल है साथियों, उनके चंद अशार पढ़ के सुनाता हूं मैं और इंशाअल्लाह अज़ीम आप गौर से सुनेंगे साथियों। नज़्म का नाम है इंडिया गेट। नज़्म का क्या नाम है? इंडिया गेट की रफ़ात है निगाहों पे मुहीत, इंडिया गेट की रफ़ात है निगाहों पे मुहीत, इंडिया गेट व तारीख का एक बाब जलील। नज़्म का नाम है इंडिया गेट साथियों, नज़्म का नाम है इंडिया गेट। जिसके मुसन्निफ कौन है? जिसके तख्लीकार है जगन्नाथ आजाद साहब। नज़्म इंडिया गेट के तख्लीकार कौन है? जगन्नाथ आजाद साहब साथियों। इनके नज़्म का नाम है इंडिया गेट साथियों। नज़्म इंडिया गेट के चंद मिसरा मैं आपके सामने पेश करता हूँ साथियों। नज़्म इंडिया गेट से चंद मिसरा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से सुनेंगे। इंडिया गेट की रफ़ात है निगाहों पे मुहीत, इंडिया गेट की रफ़ात है निगाहों पे मुहीत, इंडिया गेट व तारीख का एक बाब जलील, इंडिया गेट व तारीख का एक बाब जलील, इंडिया गेट व फिरंग की तामीर जमील, इंडिया गेट व फिरंग की तामीर जमील, इंडिया गेट व फिरंग की तामीर जमील, इंडिया गेट व गयार की नुसरत का निशान, इंडिया गेट व गयार की नुसरत का निशान, इंडिया गेट व अपनों की गुलामी की दलील, इंडिया गेट व अपनों की गुलामी की दलील। साथियों आप याद रखेंगे मैंने आपको नज़्म इंडिया गेट के कुछ मिसरे सुनाए हैं साथियों। नज़्म इंडिया गेट के कुछ मिसरे सुनाए हैं, मैं साथियों फिर से दोहरा दूं। इंडिया गेट की रफ़ात है निगाहों पे मुहीत, इंडिया गेट व तारीख का एक बाब जलील, इंडिया गेट व फिरंग की तामीर जमील, इंडिया गेट व गयार की नुसरत का निशान, इंडिया गेट व गयार की नुसरत का निशान, इंडिया गेट व अपनों की गुलामी की दलील। साथियों नज़्म इंडिया गेट में शायर ने जगन्नाथ आजाद साहब ने इंडिया गेट की अजमत का जिक्र किया है, इंडिया गेट की अजमत का जिक्र किया है और ये बताया है कि हिंदुस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है। अगरचे इसकी तामीर अंग्रेजों ने की, दौर हुकूमत थी उसकी साथियों, लेकिन इसके बावजूद इससे हिंदुस्तान की अजमत की पहचान नुमायां होती हैं साथियों। इंडिया गेट के अंदर में आप याद रखेंगे ये नज़्म इंडिया गेट के बारे में जगन्नाथ आजाद साहब ने क्या कहा। नज़्म इंडिया गेट में शायर साहब ने साथियों जगन्नाथ आजाद साहब ने इंडिया गेट की अजमत का जिक्र किया है, इनकी बड़ाई का जिक्र किया साथियों और ये बताने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में साथियों यह एक रोशन बाब है, अगर इसकी तामीर अंग्रेजों ने की है। क्यों की है साथियों? क्योंकि उस वक्त उनकी दौर हुकूमत थी, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान की अजमत की पहचान नुमायां होती हैं साथियों। आप याद रखेंगे हिंदुस्तान की अजमत की पहचान नुमायां होती हैं, हिंदुस्तान की आज़मत की पहचान नुमायां होती है इंडिया गेट से, हिंदुस्तान की आज़मत की पहचान नुमायां होती है इंडिया गेट से साथियों। अभी जो मैंने आपको बताया इंशाअल्लाह अज़ीम आप समझ चुके होंगे साथियों। मैं आपको नज़्म इंडिया गेट से चंद मिसरे फिर से दोहरा दूं। इंडिया गेट की रफ़ात है निगाहों पे मुहीत, इंडिया गेट व तारीख का एक बाब जलील, इंडिया गेट व फिरंग की तामीर जमील, इंडिया गेट व गयार की नुसरत का निशान, इंडिया गेट व अपनों की गुलामी की दलील। नज़्म इंडिया गेट में जगन्नाथ आजाद साहब ने इंडिया गेट की अजमत का जिक्र किया है। नज़्म इंडिया गेट में जगन्नाथ आजाद साहब साथियों इंडिया गेट की अजमत का जिक्र किया है और ये बताने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है। अगर इसकी तामीर अंग्रेजों ने की है क्योंकि अपने दौर हुकूमत में थी साथियों वो अपने दौर हुकूमत में थी, लेकिन इसके बावजूद भी इससे हिंदुस्तान की अजमत की पहचान नुमायां होती है साथियों। इंडिया गेट से हिंदुस्तान की अजमत की पहचान नुमायां होती हैं साथियों। आप याद रखेंगे मैं अभी आपको जगन्नाथ आजाद साहब के बारे में बता रहा था। अब मैं साथियों आपको उर्दू लुगत के अंदर साथियों चंद अल्फाज मानी से रूबरू कराता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। अफलास, लफ्ज अफलास पर गौर करेंगे साथियों।
اور غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العظیم بہت ساری باتیں تو میں بول رہا ہوں اور آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ساتھیوں اب میں آپ کو اردو لغت کے اندر چند الفاظ معنی سے روبرو کراتا ہوں جو امتحانات کے اندر ساتھیوں کبھی کبھی پوچھ لیے جاتے ہیں، اس لیے آپ یاد رکھیں گے۔ افلاس کے معنی غریبی کے ہیں، افلاس کے معنی غریبی ہوتے ہیں، دشت کے معنی جنگل ہوتے ہیں، دشت کے معنی جنگل ہوتے ہیں، عالم کے معنی جھنڈا، عالم کے معنی جھنڈا ہوتے ہیں، مفقود کے معنی ساتھیوں نایاب گمشدہ چیز، مفقود کے معنی نایاب گمشدہ چیزیں، اخلاص کے معنی ساتھیوں خلوص کی جمع ہے، اخلاص خلوص کی جمع ہے۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے محیط کے معنی پھیلا ہوا، محیط کے معنی پھیلا ہوا، تعمیر کے معنی بناوٹ، تعمیر کے معنی بناوٹ ہوتے ہیں، جمیل کے معنی خوبصورت، جمیل کے معنی خوبصورت ہوتے ہیں، اغیار غیر کی جمع ساتھیوں، اغیار کے معنی غیر کی جمع ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں مطیع، مطیع کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار، مطیع کے معنی فرما بردار، نصرت کے معنی کامیابی، نصرت کے معنی کامیابی، محبان کے معنی ساتھیوں دوست، محب کی جمع ہے، آپ یاد رکھیں گے محبان محب کی جمع ہے، اس کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے شجاعت کے معنی بہادری کے ہیں، شجاعت کے معنی بہادری کے ہیں، غنی کے معنی بے نیاز، غنی کے معنی بے نیاز، عیاں کے معنی ظاہر ہونا، عیاں کے معنی ظاہر ہونا۔ ساتھیوں آپ پھر سے سنیں، افلاس کے معنی کیا ہے؟ غریبی کے ہیں، افلاس کے معنی غریبی کے ہیں، دشت کے معنی جنگل کے ہیں، دشت کے معنی جنگل کے ہیں، عالم کے معنی جھنڈا ہوتے ہیں، ساتھیوں عالم کے معنی جھنڈا اور پرچم ہوتے ہیں۔ مفقود، مفقود کے معنی نایاب گمشدہ چیزیں، مفقود کے معنی ساتھیوں نایاب ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں، بہت مشکل سے ملنے والے انوکھے چیز۔ ساتھیوں مفقود کے معنی نایاب گمشدہ چیزیں، اخلاص کے معنی خلوص کی جمع ہے ساتھیوں، اخلاص خلوص کی جمع ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں آپ ان الفاظ معنی پر غور کریں گے تو رفعت کے معنی بلندی ہیں، رفعت کے معنی بلندی ہیں۔ اسی طریقے سے محیط، محیط کے معنی پھیلا ہوا، محیط کے معنی پھیلا ہوا، تعمیر کے معنی بناوٹ کے ہیں، تعمیر کے معنی بناوٹ کے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں گے جمیل، جمیل کے معنی ساتھیوں خوبصورت ہوتے ہیں، جمیل کے معنی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اغیار، اغیار ساتھیوں غیر کی جمع ہے، اغیار غیر کی جمع ہے۔ مطیع، مطیع کے معنی فرما بردار کے ہیں، مطیع کے معنی فرما بردار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نصرت، نصرت کے معنی کامیابی کے ہیں، نصرت کے معنی کامیابی ہوتے ہیں۔ محبان کے معنی دوست، محبان کے معنی دوست ہوتے ہیں، محب کی جمع محبان ہوتا ہے، محبان ساتھ محب کی جمع ہے جس کے معنی دوست کے ہیں۔ شجاعت کے معنی بہادری کے ہیں، شجاعت کے معنی بہادری کے ہیں۔ غنی کے معنی بے نیاز کے ہیں، غنی کے معنی بے نیاز ہوتے ہیں۔ عیاں کے معنی ظاہر ہونا، عیاں کے معنی ظاہر ہونا۔ ساتھیوں میں نے ابھی آپ کو ہماری نصابی کتاب درخشاں سادوم کے اندر میں شامل نظم انڈیا گیٹ کے بارے میں بتایا، ساتھیوں ان کے تخلیقات کے بارے میں بتایا جن کا نام جگن ناتھ آزاد صاحب ہے، جن کا نام جگن ناتھ آزاد ہے، جن کی پیدائش ساتھیوں کب ہوئی تھی؟ 1918 عیسوی میں، 5 دسمبر 1918 عیسوی کو عیسیٰ خیل کے اندر میں۔ عیسیٰ خیل کہاں ہے ساتھیوں؟ اب پاکستان کا حصہ ہو گیا ہے، اب یہ پاکستان میں پڑتا ہے ساتھیوں، میان والی تحصیل میں پڑتا ہے ساتھیوں، پاکستان کی ضلع میان والی کی تحصیل میں ایک گاؤں پڑتا ہے جس کا نام ہے عیسیٰ خیل۔ ساتھیوں یہیں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ 5 دسمبر 1918 عیسوی کو، 5 دسمبر 1918 عیسوی کو۔ ساتھیوں اگر کوئی آپ سے ان کے وفات کے بارے میں پوچھے تو ساتھیوں ان کی وفات 25 جولائی 2004 عیسوی کو، 25 جولائی 2004 عیسوی کو کہاں ہوئی تھی ساتھیوں؟ ان کی وفات دہلی کے اندر میں 25 جولائی 2004 عیسوی کو جگن ناتھ آزاد صاحب کی وفات ہوئی۔ کہاں پر؟ دہلی کے اندر میں ساتھیوں۔ جب ملک کا بٹوارا ہو رہا تھا ساتھیوں 1947 عیسوی میں، دسمبر 1947 عیسوی میں ساتھیوں وہ پاکستان سے ہندوستان آ گئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے ساتھیوں۔ آپ یاد رکھیں گے پاکستان سے ان کا تعلق ہمیشہ قائم رہا ساتھیوں، میں نے ان کی تصنیف میں آپ کو بتایا ساتھیوں۔ آپ یاد رکھیں گے فکر اقبال، نوائے پریشان، تسکین کی دیش میں اقبال کی کہانی، تعمیر فکر میرے گزشتہ روز و سب جستجو کہکشاں اجنتا، تلوک چند محروم، تلوک چند محروم، مرقع اقبال وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں ساتھیوں۔ امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب میں آخر میں آپ تمام ساتھیوں سے
फिर मुआद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं, पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें इस चैनल को, ताकि मजीद लोग इससे फ़वायद हासिल कर सकें। साथियों प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी आपके लिए नए नए वीडियोस अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों मैं आपको बताऊं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो ये क्लास आपके लिए बहुत अहम है। साथियों आप यकीन कीजिए, ये क्लास के अंदर जो मवाद आप देख रहे हैं, जो मवाद मैंने आपको अभी बताया है, ये सारे मवाद SCERT पर मुश्तमिल है। आप याद रखेंगे बीपीएससी के अंदर में साथियों सारे सवालात SCERT और NCERT पर मुश्तमिल होता है। साथियों ज्यादातर इम्कान होते हैं कि सारे सवालात SCERT से ही होते हैं। याद रखेंगे आप, ये सारे मवाद SCERT का है, जिसको मैंने उठाकर लाया साथियों आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आपने गौर से देखा होगा, पढ़ा होगा। साथियों अगर इसमें कोई बात ऐसी हो जो आपकी समझ में नहीं आई है, साथियों आप कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीम अगले क्लास के अंदर मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, अगले क्लास के अंदर में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा जो आप कमेंट करेंगे। साथियों अब दीजिए इजाजत, कल फिर मिलता हूँ नए वीडियोस के साथ और नए उन्वान के साथ। तब तक आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। खुदा हाफिज।